نکالیے سورہ حدید آیت نمبر 21 کرنا ہے. آیت نمبر 21 نکالیے. قرآن ہے بھائی؟ قرآن نہیں ہے تو اپنا موبائل لے لیجیے. موبائل میں بھی ہے نا؟ جی ہاں 70% ہو گیا. 30% باقی ہے. انشاءاللہ 30% یہ رمضان سے پہلے ختم کر دیں گے مڈل آف مارچ تک انشاءاللہ. اور کلاس تو چلتے رہیں گی انشاءاللہ تا حیات چلتے رہیں گی. جو ہے اس کے بعد میں قرآن شروع کریں گے پورے 30 پارے سلسلے جو چلتے رہیں گے 10 چلاتے رہیں گے یعنی شروع سے ختم ہوئے تک جب بھی ہو اور دیکھا. چلیے نہیں ہے پارا نہیں ہے. ہاف این آور لیٹ ہو گیا آپ. جی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ارے نزلہ تو بہت معمولی چیز ہے. نزلے سے ڈر گئے تو کیسا جی؟ ڈرنا ہے نزلے کو ڈرنا نہیں کبھی. ڈرنا نہیں ہے بہانے ہیں سب. یہ معاملہ جانے کے وہاں بہانے ہیں اور کچھ نہیں. معمولی چیزوں کو ڈرنا نہیں. چلیے نکالیے آیت نمبر 21 نکالیے بھائی. قرآن شریف نکال لیے تو ہو گیا. دیکھیے پڑھ رہا ہوں میں. سابقوا الی المغفرۃ من ربکم. سابقوا لفظ کیا ہے؟ پہچان ہو گیا. مزید فی کے بھی 8 باب کر لیے آپ لوگ اور 3 کے بھی کر لیے. ہاں فائلوں پہ کون بولے؟ جمع ہمارے جگہ کون بولے؟ علی میاں. ہاں کس لحاظ سے بولے بھائی؟ لاسٹ میں وہ الف ہے وہ ہے نا. ہاں میں لاسٹ میں جمع میں بھی آتا. جمع میں بھی آتا نا وہ سادہ وہ ماضی کے جمع میں بھی آتا. مادہ سبق ہے کیا؟ سبق ہے. سین بےخا مصدر کا باب افعال سے ہے اور باب افعال کیسا ہوتا ہے بھائی؟ الف ہے نا صاد. باب افعال کی پہچان کیا ہے؟ ماضی میں الف زبر. باب افعال میں ماضی میں الف زبر اور جو ہے امر میں الف زبر. وہ ٹپیکل ہے باپ. اس کو اچھی طرح یاد رکھنا. باب افعال یہ مفعلہ کا ہے. دیکھو مادہ کیا ہے؟ سین بے خاف. سمجھو بھائی اب آپ کو یہ آپ کو جو ہے اتنی نالج دے دی گئی ہے کہ اب آپ جو ہے خود سے لفظ کی شناخت کر سکتے قرآن میں. ہاں تو اتنا کیا ہے آپ جو سبق سیکھے ہیں اس میں جو ہے کھڑو رہنا. پہلے مادہ کو پکڑنا. مادہ کیا ہے؟ سین بے خاف. سین کیا ہے؟ سین بے خاف مادہ ہے. مادہ ہے. اس کا مصدر سین بے خاف 57 مادہ ہے. مادہ ہے. اس کو بعد مفعلہ میں لے جاؤ. مفعلہ میں لے جاؤ. کیا کرتے؟ مفعلہ میں لے گئے تو میم زبر اور کیا کرتے؟ پہلے حرف کے بعد میں ایک الف آخری میں بولتا تو کیا ہوگا؟ یہ مسابقتن. آگے بڑھنا. مسابقتن کیا ہے؟ یہ مصدر ہے. یہ مصدر ہے. ماضی میں ماضی کیا ہو جائے گا؟ یہ میم گرا دیں گے یہ گولتا گرا دیں گے. کیا ہوں گا؟ سابق. مفعلہ کی پہچان کیا ہے؟ الف. الف ہے نا موجود سین کے بعد. سمجھ میں آ نہیں بھائی؟ سبقت کر کے یہ سبق آ گیا.
माजी से क्या बनाएंगे? मुजारे। मुजारे बोलो क्या होगा इसका? علامت مضارع یا لیں گے بیخو مضارے میں الف زیر درمیان حرف پہ زیر آنا کیا ہوگا؟ یسابقو. امر کیا ہوگا؟ اب علامت مضارع گرا دیے، جزم نہیں ہے، جیسے کا سا لکھیے سابق. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کا جمع کرے تو کیا کہیں گے؟ واو الف میں آنے گے وہ سابق کو پہلا لفظ. ٹھیک ہے جی. سبق کا ہے یہ سبق کا جو ہے سین بے قاف مادہ ہے، تو اس کو بعد مفعلہ میں نہیں جانا ہے. یہاں دیکھیے یہ ہے، یہ شکل میں ہے وہاں قرآن میں. یا سین کے بعد میں اب آپ کو یہ معلوم ہو گیا سین بے قاف مادہ ہے، تو سین کے بعد میں الف ہرانا تو یہ مفعلہ کی پہچان ہے. اگر کسی مادے کے بعد میں اگر الف آ رہا تو بعد مفعلہ سے رہتا، تو اس کو مفعلہ میں جو ہے پہلے کیا بناتے ہیں اپن؟ مصدر. تو مسابقۃ ہو گیا، پہلے میم پیش، پھر یہاں الف کا اضافہ، آخر میں گول تھے. پھر ماضی بناتے وقت یہ دونوں کو گرا دیتے ہیں. کیا اپن کرے سو ایسا؟ تو کیا ہوتا ہے؟ سابقہ. سابقہ سے پھر مضارع بنانا ہے. یا سابقو درمیان حرف پہ زیر آتا نا، یا سابقو. تو اس کا امر کیا ہوگا؟ سابق. یہ علامت مضارع گرا دیے، یہاں بچا ہوا ہے، یہاں جزم نہیں ہوتا تو جیسے کا اصل لکھیے سابق، آخر میں جزم دیجیے سابقو. یہ جمع کا صیغہ ہے بولتے واو والی بات کرو سابقو. تا الف سے بھی اسٹارٹ ہوا تو مفعلہ کا نہیں، جی تا الف کا بھی رہا تو ہاں. مفعلہ کا بھی سمجھنا. چلیے سابقو. سابقو کا مطلب کیا ہوا؟ دوڑو دوڑو لپکو. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اوپر بیان کریں نا سب کیا کریں، مغفرت ہے وہ جو ہے جو بولے اس کو سابقو دوڑو الی مغفرتن. کس کی طرف؟ ہاں مغفرت کی طرف دوڑو، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو. من ربکم اپنے رب سے، اپنے رب کی طرف، وہ جنتین اور جنت کی طرف. اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرو، لپکو، اس کے لیے کوشش کرو. آپ دیکھیے وہ جنتین ارزوہا. ارزوہا ہا کی ضمیر کدھر جاری بھائی؟ جنت کی طرف. ارزوہا کا ارض السماء والارض. اور جنت کی جو ہے چوڑائی کیسی ہے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مانند ہے کا عرض السماء والارض، یعنی آسمان اور زمین کی جیسی چوڑائی ہے، جنت کی بھی چوڑائی اتنی ہے، یعنی بہت بڑی ہے جنت بولنے کا مطلب. اب اس کے بعد میں لفظ دیکھیے وہ عدت. وہ عدت کیا ہے بے پہچانی ہے، ایک ایک لفظ کو پہچاننا پہلے. عزت بولے تو ٹائم کیا نہیں یہاں میں سے اس کا مادہ کیا ہوگا بولیے؟ عین دال. عین دال دال. صحیح ہے، بالکل صحیح. دال کی تجدید آ گئی نا. ایک چیپٹر پڑھے اپن مضاف کا، ایسا مادہ جس کے آخری کے دو حرف یکساں ہوتے ڈبل آتے، سین دال دال. ایک چیپٹر ہے اس کے اوپر، وہ دیکھے ہوئے رہنا پڑتا تو یہ سمجھ میں آتا. ادا ہو گیا ہے. ہاں اب شروع میں کیا دیکھیے الف ہے، شروع میں الف ہے تو اس کو باب افعال میں لے جانا ہے. کیسے میں لے جانا ہے؟ باب افعال. تو کیا ہوں گا یہ؟ بولو افعال ان کا کیا ہوں گا؟
ईदादुन, ईदाद, ईदादुन, ये पहले अलिफ जेर, माध्य के आखिरी हर्फ से पहले फिर एक अलिफ, ईदादुन, पहले हर्फ पे जज़म, ईदादुन, क्या हो गया ये? क्या है ये? मस्दर है ये। मस्दर है। माजी बोलिए, माजी माजी किससे आता है इसका? अली जबर से आता है, याद रखना हमेशा। बाब इफाल का माजी के शुरू में क्या रहना जरूरी है? अली जबर, आखा मुझे लिख देना उसको। أعد आदा होता है, आदा। ये मुजाफ का जो चैप्टर देखे तो आप समझ में आता हो। हाँ? ये माजी हो गया। ये माजी क्या है? मुजक्कर का है। अगर मुन्नस का लेना रहा तो क्या लेंगे? ता जज़म ऐड करेंगे। أعد माजी का लेना रहा तो क्या करेंगे? आदत, عادة आदत जो भी है ये आ गया। हम अगर वहाँ क्या है देखिए, पेश है, أعد क्या होगा वो सोचना है। مجهول वहाँ तक तो पढ़ गए। ता जज़म आ गया, अलीफ आ गया, दाल आ गया, सब आ गया। तो वो अलीफ अलीफ पे पेश आया तो मतलब क्या है? مجهول मजहूल समझना, मजहूल समझना। सेगा को सा है ये, सेगा को सा है, माजी का है ना भाई? माजी का सेगा है, मोनस का सेगा है, वाहिद का सेगा है। ता जज़म होने की वजह से माजी का है, हाँ, मोनस का है, वाहिद मोनस का है। واحد हाँ, माजी के सेगे में मजहूल कैसा बनाएंगे? बोल सकते हैं आप? माजी का अगर सेगा है तो मजहूल कैसा बनाएंगे? शुरू में पेश और बाद में जबर, साथ में, दूसरे उसमें जबर लगा। हाँ, शुरू में पेश, दरमियानी हर्फ पे जेर। शुरू में क्या है? अली जबर है, इसको क्या कर देंगे? पेश कर देंगे। दरमियानी हर्फ के ऊपर क्या करना है? जेर कर देना है। तो यहाँ डबल इस पे लिखा हुआ है तो इसको जेर कर देते हैं। उइद्दत, वो लफ्ज़ है देखिए वहाँ, उइद्दत, उइद्दत, इसके माने क्या है? तैयार की गई है। जन्नत, जन्नत ता है ना, बोलता आखिर में, तो क्या है? वो मोनस शुमार है। जन्नत क्या है? मोनस है। इस वास्ते ये सेगा इस्तेमाल हो। जन्नत मोनस होने से वाहिद मोनस का सेगा इस्तेमाल होगा। और ये मजहूल है ये, तो क्या हो गया ये? उद्दत, यानी जन्नत तैयार की गई है। लिल्लज़ीना आमन, उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, वो रुसुलिही, और उसके रसूलों पर। जो अल्लाह पर ईमान लाए और उसके रसूल है, रसूल है देखिए जमा है उसका। रसूल की जमा क्या है? रसूल। ही भी है देखिए, यानी अल्लाह के रसूल, अल्लाह के जो अल्लाह पर और अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाए, उन लोगों के लिए जन्नत तैयार की गई है, बोल दे रहे हैं अल्लाह ताला। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया? ज़ालिका फज़लुल्लाही, और वो जो है ये तैयार करना सब किसके लिए है? ये वो ज़ालिका फज़लुल्लाही, ये अल्लाह का फजल है। फज़लुल्लाही क्या है? बेमुरक्कब को सा बोलो, बस बिल्कुल सही, बिल्कुल समझ में आ रहा भाई, है ना? हाँ, फज़लुल्लाही बोल तो अल्लाह का फजल। यूती ही मन यशाओ, यूती ही की तशरी करो। अलिफ ताया हाँ सही है, मादा बोलिए क्या हुआ? अलीफ ताया मादा है इसका, ईता तो क्या है ये बोलिए? हाँ सही। समझे भाई? यूती ही क्या है देखिए, समझ जाओ इसको। एक एक लफ्ज़ को समझना, जब तक एक एक लफ्ज़ को समझे नहीं, आयत समझ में नहीं आती। आयत का मतलब ये समझ सकते हैं। अलीफ ता या मादा है, मादा क्या है? अलीफ ता या, तो इसको क्या क्या जा रहे हैं मालूम है?
बाब इफाल मिल जा बाब। अब यहाँ देखिए, यहाँ अलीफ है, यहाँ या है, ये की उसमें 2 हरूफ इल्लत आ गए वो डेंजरस तो डबल काशियस हो जाना। तो इफाल में क्या करते हैं हम, ये इसके पूरे चीज़ें आगे आएंगे। अब ये जो हरूफ इल्लत है ना, उनका इस्तेमाल तफसील से आगे आएंगे। अब यहाँ इसको बाब इफाल में कैसा ले आ रहे हैं बता दे रहा हूँ। बाब इफाल में अलीफ ज़ेर आया था पहले, अब यहाँ क्या है देखिए, फा बोल तो पहला है, पहला अर्थ या है, वो अलीफ है, तो ये अलीफ यहाँ या से बदल जाता, ई ता, और या जो है ये हमजा में हो जाता। अच्छा, तो आगे पढ़ेंगे अब। तो ये क्या मजदर बनता है, इताउन। इताउन माने अता करना, अता करना देना, क्या माने अता करना देना, इताउन। तो ये मजदर है। माजी क्या होगा, माजी क्या होगा बोलिए, माजी इसका बाब है तो अलीफ ज़बर से आएगा। इसको क्या करते, या है ना, अलीफ ज़बर से लिखते, इसको आगे आएंगे भाई, अता, माजी अता होता। और मुजारे क्या होगा इसका, यू से, ये या यहाँ पर या था, फिर यहाँ अलीफ कर दिए, तो ये जो है ये अलीफ को जो है वाव की शक्ल दे देते। ये अलामत मुजारे क्या लिखना हुआ हमने को, इफाल में अलामत मुजारे पेश वाली होती, तो ये पेश है, तो ये अलीफ जो है या है वाव से बदल जाता। इसको ऐसा लिखते यू यूतीउ, ज़मीर लगा दो, है ना? यूती ही होगा। यूती हो गया, तो ये यूती ही है यहाँ, क्या है यहाँ, यू सी ही, यूती, यूती हु था, ये दोनों जेर होने की वजह से यूती ही है। ये भी आपने पढ़े से हैं, वो पिछले अखबार दौर में जितने पढ़े हुए हैं ना, वो जितने भी इसको बहुत ही कंडेंस करके लिखे सो है, ये इसकी तफसील से लिखे तो इतना वैल्यूम मिल जाता था। आपको तफसील से समझाते हुए लिखे तो ग्रामर की बुक इतनी मोटी जाती थी। एक इमाम रज़वी साहब हैं, इमाम रज़वी साहब, ये कुरान का क्या मामला है मालूम है, कुरान को समझने के दो चीज़ें, एक जो है आप सतही तौर पे समझना, कुरान को सतही तौर पे समझना, सतही तौर पे समझना ये कम से कम रिक्वायरमेंट है मुसलमान की। कुरान को सतही तौर पे समझना ये कम से कम रिक्वायरमेंट है। सतही से मतलब एक समंदर है समझो, समंदर पे पेट्रोल कुछ डाल दिए तो पेट्रोल ऊपर कैसा रहता, ऊपर ही तीरता रहता, दिखता नहीं, वो सतह पे है, यानी ऊपरी, बिल्कुल ऊपरी तौर पे, छोटे सतह पे, ऊपरी तौर पे आप जो है कुरान को समझ जाते। मलाई खा गए। अब कुरान को तदब्बुर कश के इसकी गहराइयों में जाना, समंदर की तह तक जाना, वो समझने को बोलते तदब्बुर कुरान। कुरान में तदब्बुर करना सीखना, और ये सबसे बड़ा मसला है, सबसे मुश्किल चीज़ है दुनिया की। अल्लाह के कलाम को कोई नहीं समझ सकते, बहुत कम लोग समझते हैं। और जितने दानिश्वर हैं, बड़े से बड़े उलमा हैं जो हैं, एक इमाम रज़वी साहब जो है, कुरान के 30 पारे हैं ना, एक एक पारे के ऊपर एक एक वॉल्यूम लिखे हुए हैं, एक पारे के ऊपर एक वॉल्यूम, तो 30 वॉल्यूम लिखे हुए हैं। यानी कुरान की गहराई के ऊपर अपने हर चीज़ की तफसील करते हैं। बाद में क्या लिखते हैं वल्लाहु आलम। मेरे लिहाज से ऐसा है भाई, फिर मैं नहीं जानता, सब अल्लाह जानता।
इमाम रिजवी है, इमाम राजी है, इमाम राजी फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह राजी इब्ने कबीर हाँ, तफसीर का नाम ये- इब्ने कबीर। इतने कसीर अलग है नहीं इब्ने कबीर, हाँ इब्ने तो कसीर इसके का उनके नाम- 30 वाले में इतना नहीं लिखे होंगे जरा इमाम गौर करो। वसी है RAA। तो उसके बाद में भी ये ले लो सवाल। हर आलम बड़े से बड़े आलम को ले लो आखिरी में ले लो हाँ भाई ये मेरे लिहाज से ऐसा है फिर भी अल्लाह को माफ मुझे सही नहीं माफ मैं सही गारंटी से नहीं बोल सकता जितनी सही बात लिखिए, है अच्छा, कोशिश करके लिखिए। आदमी को जो है, मुख्तसर इल्म दिया गया है उससे समझ नहीं सकता कुरान में बनी इसराइल में है हाँ? तो पूछे यहूदी कि भाई आप रूह समझाइए हम रूह क्या चीज़ है इंसान के बदन से जब रूह निकल जाती है तो वो मुर्दा हो जाता उसको मुर्दा समझ के ले आके गाड़ देते ख़त्म कर देते तो व्हाट इज़ दैट रूह तो सोल की क्या चीज़ है Spirit. हुजूर से सवाल किया गया हुजूर से सवाल किया गया तो हुजूर बोले "हाँ, ठीक है कल जवाब दो तुमने इसके साथ और भी 2 सवाल थे तो पूरे यहूदियाँ जो है दूसरे दिन आ गए पूछने का नहीं यहूदिया ने मुशरिकी ने मत कहा सूर्य कहाँ का है? ये इस्लाम मुशरिकीन क्या कर ये थे यहूदी बस्तियाँ थी ना मदीने में वो जाके भाई एक शख्स आया है हमारे पास ये वो उसका पैगम्बरी का दावा कर रहा है क्या करना है हमको समझ नहीं आ रहा वो तो उन्होंने बोले उन जाके उनसे ये 3 चीज़ें पूछो अगर ये 3 चीज़ें उनका जवाब सही रहा तो उन्होंने समझो कि सही है आदमी सही अगर नहीं दे सका तो उन्हें गलत है वो सही बोले यहूदी सही बोले तो आके आपसे पूछते तो आप जो है पैगंबर महबूब तरीन इंसान अल्लाह का सबसे महबूब तरीन बंदा कौन है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे महबूब बंदा कोई नहीं है दुनिया में इमामुल अंबिया अंबियों के इमाम महबूब तरीन बंदा खातिमुन नबीय्यीन। तो आपसे ये भूल हो गई कि मैं इंशाअल्लाह नहीं बोले इंशाअल्लाह मैं कल जवाब दूंगा नहीं बोले इंशाअल्लाह बोल गया तो अल्लाह को गज़ब आ गया 15 दिन हो गए कोई वही नहीं आई और ये लोग आके जो है धज्जियाँ उड़ाते चले जा रहे मुशरिकीन क्या कल बोले परसों बोले क्या तुम बेकार है तुम सही माने में वो नहीं है ये वो हंगामा कर रहे तो 15 दिन के बाद में अल्लाह ताला जवाब भेजता है और बोलता है ये इसलिए किया मैं तुम जो है इंशाअल्लाह का इस्तेमाल नहीं किया अल्लाह चाहा तो जवाब दूंगा मैं तो क्या कर सकते हो तुम अगर आप वादा कर रहे हैं कि भाई मैं आपसे कल मुलाकात करूंगा क्या गारंटी आप कल तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह 20 दिन ला क्या गारंटी 20 दिन नहीं रहती तो हमेशा इंशाअल्लाह को इस्तेमाल करना तो जवाब में अल्लाह ताला बोलता है कि रूह एक ऐसी चीज़ है मेरा हुक्म है वो और वो क्या चीज़ है मैं तुमको उतनी अक्ल नहीं दिया कि तुम उसको समझ सको क्लोज केस क्लोज कर लिया अल्लाह पाक। इंसान को इतनी अक्ल नहीं दी गई कि वो रूह को समझ सके अल्लाह जवाब दे दिया बाद में अब क्या करना उसकी जुस्तजू अब एक क्रिश्चियन यहूदी जो साइंटिस्ट है ना पीछे पड़े हुए हैं उसके क्या है देखेंगे वो अरे कैसी चल रही नहीं उसकी बना सकते उसकी 3 सवाल का रखा था और 3 साल के। और वो एक जो है असाब कायद का करे थे एक जो है ये यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र कैसा पहुंचे सुल्तान ये तदब्बुर और तफसीर में फर्क है क्या क्योंकि तफसीर हाँ। उलमा का काम है आम आदमी का काम और नहीं। तफसीर में फर्क रहता है वही है मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब की भी तफसीर है अब जो मुफ्ती मोहम्मद शफी ये रहते ना अक्सर हुजूर के जो हदीसें भी है जो उसको मोतबर कम मानते आप जब वो हदीस कई लोगों से जो है वही हदीस बोली जाती है मुत्तफ़िक़ अलैह बोल के वो सबसे बड़ी किताब को उससे बुखारी शरीफ है मुस्लिम जो है दोनों की एक ही हदीस है तो मुत्तफ़िक़ अलैह उसमें जान आया और उसमें जो है सनद का मामला रहता है उसमें और बस हदीसें ऐसी है कुरान से टकराते कुरान में एक है समझो उसके खिलाफ कुछ हदीस है तो उसको रद्द कर देने का हुक्म है ज़ईफ़ उसको रद्द कर देना कुरान को सही समझो कुरान अल्लाह की किताब है और अल्लाह उसकी हिफाजत कर रहा है तो इससे बढ़ के बात कुछ नहीं हो सकती तो क्या होगा ये यूटी ही वो तो अता करता है
माँ यशाओ, हाँ? इससे चाहे मैं यशाओ, जिसे वो चाहता है। क्या करता है वो? जिसे वो चाहता है अता करता है। वल्लाहु ज़ुल फज़लुल अज़ीम, अल्लाह जो है बहुत अजीम फजल वाला है। खत्म हो गया। ये साबिकू दौड़ने के माने आए ना, साबिकू हाँ, और मुसाबिका जमा अमर वही दौड़ना, आगे बढ़ना। कंपटीशन में हाँ, जाना। कॉम्पिटिशन। साबिकुल जमा अमर बस। चलो 5 मिनट है। फहमुल कुरान क्या है? हाँ, फहमुल कुरान क्या है? तदब्बुर मतलब समझना, दो भी एक ही चाहिए। अहम मतलब समझना, कुरान को समझना। कुरान को गहराइयों से समझना बहुत मुश्किल है, यानी उसके अहकामात और उसकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो समझना आसान है। अहकामात की हद तक एक बच्चा भी समझ जाता। अल्लाह क्या चाहता है बंदे से अपने, ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, ऐसा, वो चीज़ें साफ है। पर पूरी कुरान को आप जो है तो गहराई में समझेंगे बोल तो इंसान के बस का रोग नहीं, मुश्किल है। तो 5 मिनट बाकी है और क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज़ बहुत पूछता हूँ, बोलिए सबसे बड़े सवाब का काम क्या होगा? कुरान सिखाना। बोलिए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा इल्म सीखना अलैहि और सलातु दूसरों को वस्सलाम। सीखना और सीखना। अच्छा काम है, ठीक है। और कोई? और जरूरतमंद की मदद करना, जो आजकल बहुत लोग परेशान हैं, माली मदद से कर सकते। और ये सब सवाब का काम है। ये सब सवाब का काम है। सबसे बड़ा काम, सबसे बड़े सवाब की चीज़ क्या है? एक शख्स दोज़ख में जाने वाला है, आप उसको मेहनत करके इस्लाम में दाखिल करा के जन्नत में भिजाए, वो सबसे बड़ा काम। हमेशा की दोज़ख से बचाता है। हाँ। जो शख्स दोज़ख में जाने वाला है, अगर कोई दूसरा एक शख्स है ईमान वाला, उन्हें उस दोज़खी आदमी को समझा के इस काबिल बना दिया कि उन्हें उसको कबूल कर लिया, जन्नत में जाने के काबिल बना दिया, तो वो सबसे बड़ा काम। मगर ईमान लाने के बाद है या गैर ईमान लाने वाले? गैर ईमान गैर ईमान वाला का कुछ भी नहीं है। मान ला जरूरी है। अगर कोई काफिर है, बेहतरीन अखलाकी आदमी है, बेहतरीन जो है सखावत करने वाला है, हर चीज़ की वो है, ईमान नहीं है तो दोज़ख है। खत्म, वही खत्म ना। ईमान फंडामेंटल है, ईमान ही नहीं तो ख़त्म। जब तक आप अल्लाह की वहदानियत को नहीं माने, वो ईमान आ ही नहीं सकता। वो आदमी पाक ही नहीं है, वो आदमी पाक हो नहीं सकता। नजीस है वो। अब्दुल्ला बिन जदान इन्नमल मुश्रिकूना नजसुम सूरह। और एक चीज़ सुन लो, छोटी सी चीज़, सफाई। सफाई के लिए हदीस है कि सफाई आधा ईमान है। पाकी जो है आधा ईमान है। अब है पाकी क्या है? अब इंसान जो है नापाक हो गया, गलावत लगी, कुछ बीवी से हम मिस्त्री करके हो गया तो नापाक हुआ था, तो गुस्ल करना वाजिब, गुस्ल करना ज़रूरी है। अब गुस्ल कैसा करेंगे भाई? गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं? हाथ धोना, कुल्ली करना, 3 है। गुस्ल के फ़राइज़ 3 है। एक जो है नाक में पानी डालना। नाक को जो है नाक की जड़ तक अच्छा पानी डाल के अच्छा नाक साफ करना, गरारा करना। दूसरा पूरे आंख को जो है बाल बराबर भी जगह खुश्क में रखना। ये पाँव के उंगलियों के बीच में भी जो है वो पानी जाना, उसको भी जो है अच्छी तरह से साफ करना। और एक चीज़, इंसान जो है खुद अपना मेहतर है, हर इंसान मेहतर है अपना। अब माँ है, बच्चों की भी मेहतरानी का काम करती माँ, गलाजा साफ करती माँ भी, माँ बच्चों के गलाजा साफ करती। बड़े बाद में अपना अपना कर लेना पड़ता है। आज भी हर शख्स मोहताज है, अपना फजला अपन साफ करना पड़ता नहीं पड़ता? उसकी सफाई का क्या है एहतमाम? उसकी सफाई कैसी होंगी? पानी से आप रोज़ नंबर 2 को जाते हैं, है ना?
उसकी सफाई का एहतमाम कैसा करना चाहिए, वो बहुत अहम चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है। इसमें अक्सर गफलत हो जाती है, उसको याद रखो। उसको पानी से इस कदर धोना कि खुरदुरी आवाज़ आना, चिकनापन चले जाना पूरा, उसमें चिकनाहट रहती है फजले में। अब 1-2 मरतबा करे तो सफाई नहीं होती, इतनी बार सफाई करना कि खुरदरापन आना, उसकी आवाज़ आना, और वो भी पूरे हिस्से की, अतराफ की, वहाँ की, सब अच्छी तरह से। ये भी बहुत अहम चीज़ है। ये अक्सर लोग ऐसे चीज़ें हम बोलते नहीं, मगर बोलना चाहिए, मालूम होना इंसान को। अब एक छोटा गाँव वाले छोटा जो है छोटा लेके जो है चले आते बैठ के, उससे जो है सफाई होती नहीं होती पता नहीं। अभी हम लोगों तो इतना बनी साइड को तो खून निकला तक जैसा था। तो एक बहुत अहम चीज़ है, ये ध्यान में रखो आप। अपनी फजले की सफाई अपन खुद करते हैं तो उसको इतनी दफ़ा साफ करना घस के कि खुरदरेपन की आवाज़ आना, जब तक सफाई नहीं होती। फिर जो है गुस्ल होना, उसके बाद में वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं भाई? 4। तो 4 फ़राइज़ करना है एहतियात से। उंगलियों के बीच में भी जो है वो कर लेना। अच्छा करना है। अगर इंसान पाक है, गुस्ल के साथ है, वज़ू के साथ है, तो समझो जो है ज़बरदस्त हिफाजत में है। ये उंगलियों के बीच वो शख्स ज़बरदस्त हिफाजत में है, उसके ऊपर कोई जादू टोना नहीं होता, कुछ नहीं होता। बहुत चीज़ें उसके साथ हो जाती हैं। कुल के सोने में पड़े। शैतान भी उसके पास नहीं आता। और शुरू में बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करना ना, हर काम बिस्मिल्लाह से, हर काम बिस्मिल्लाह से करना, जो जायज़ है, हर काम बिस्मिल्लाह। गलत काम नहीं। आम हालत में गुस्ल करना ज़रूरी है, ये ज़रूरत पे ही गुस्ल करना। जैसा कि मैं जस्ट पानी नहाना चाह रहा हूँ हाँ, तो गुस्ल करना तो लाजिम हो जाता है। बिस्मिल्लाह बोला। यानी अगर आप जो है पाक हैं ऑलरेडी, हाँ, तो खाली आप पूरा जिस्म धो लिए तो भी चल जाता। मुज़ाकरा नहीं चलता। मगर आप जो है ज़रूरत है पक्का गुस्ल करना है बोलो तो आप बिल्कुल नापाक हो गए हैं, जी। कुछ गलत लग गई है, जो है हमबस्तरी हो गई है, ऐसी चीज़ें हैं तो करना। नहीं, लेकिन आम उसमें भी बिस्मिल्लाह बोला। हाँ आने से पहले हाँ, बिस्मिल्लाह हर चीज़ में बोलना हो, खाते वक्त बोलना, बैठते वक्त बोलना, उठते वक्त बोलना। वो तो अल्लाह का नाम, जिस काम में अल्लाह का नाम नहीं है उसमें बरकत ही नहीं है, बरकत ही नहीं देता अल्लाह ताला। सही बात। घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह। आप चाहते हैं वो आप जो काम करें उसमें बरकत हो तो अल्लाह के नाम से शुरू करो। बिस्मिल्लाह है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है, आप लोग देखिए भाई होमवर्क क्या है बोलते हो, होमवर्क कुछ नहीं है, सिर्फ ये 8 अबवाब अच्छी तरह से याद करके आना, उसकी शनाख्त भी क्या है अच्छी तरह से याद करने आना। कुछ मैं सवाल करूँगा तो बोलने की काबिल है। 8 आपका आइंदा 5 दिन का मौका है, ठीक है। ठीक है।